Salam everybody. I hope you guys are well. Welcome to the class. Assalamu alaikum, Meher. How are you? Assalamu alaikum, Myra. How's it going? Assalamu alaikum, Faria. Assalamu alaikum, Mohammed Taha. Assalamu alaikum, Anfal. Assalamu alaikum, Abdullah Hassan. क्या हाल चाल है? How's it going? Assalamu alaikum, Asume. Assalamu alaikum, Ahmed. Assalamu alaikum, Jia. Long time. Riha. Assalamu alaikum, Shafan, Abir, Nabba, Yahya. Assalamu alaikum. How are you? I hope everybody is doing well. चले मेरे जवानों, let's start off with our work for today. Ramin, assalamu alaikum. We're starting off with dynamics. Please give the heading. We have finished nuclear. Mubarak. Dynamics start करें. आप लोगों ने सवाल try किए? More questions besides the questions that we've done in our classes and in our tutorials. Have you guys tried the topical? Your hand at the topical. Amazing. Meher, Myra, हो रहे हैं सवाल? I hope मसला नहीं आ रहा होगा इंशाल्लाह. उम्मीद तो है. The ones that I gave, know that those not the only ones that you should be doing. ये तो मैंने पहले दिन बताया है. You should be doing more questions. अनफाल टॉपिकल पकड़ो. टॉपिकल करना बहुत जरूरी है. जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसके अलावा और भी करने जरूरी है. ठीक है? Oh, the ones on the app, the whole file. Okay, brilliant. Yeah, उसके अलावा भी करने जरूरी है. सही है. फिर पता चलेगा. डायनामिक्स और जो हमारी फाइल में थे वो हो गए अनफाल सारे. उनमें प्रॉब्लम तो नहीं आई? ग्रेट. अमेजिंग. चले मेरे जवानों, डायनामिक्स करने लगे. डायनामिक्स में सबसे पहले गिव द हेडिंग mass and weight. Mass and weight. Assalamu alaikum, Padma. Welcome. Please write. Mass is the measure of the amount of matter in a body. Get ready. It's a measure of the amount of matter in a body. And hence, Tala, you can't see my screen. Go out, come back in. It has to be your issue. Mass is the measure of the amount of matter in a body. अब मुझे बताओ, जितना amount of matter आपकी body में ज्यादा होगा, उतना ज्यादा आप मोशन को सपोर्ट करोगे या अपोज करोगे? द मोर द मैटर इनसाइड यू, विल इट बी इजी टू मूव यू, विल इट बी डिफिकल्ट टू मूव यू? एक बहुत भारी चीज पकड़ लो. एग्जैक्टली, इट गेट डिफिकल्ट. सो हेंस कैन आई से दैट mass is the property of an object that resists the change in motion? Would that be fair to say? कि mass वो property है of an object हमारे अंदर which resists. हाँ वही inertia. Inertia mass से आता है ना? Inertia कहाँ से आता है? Inertia mass से आता है. So can we say that mass resists change in motion? ये कहना मुनासिब है कि नहीं है? हम बचपन से inertia inertia पढ़ते आ रहे हैं. मुझे बताएं, mass असल inertia inertia के पीछे कौन है? Mass. So does mass support motion or does mass oppose motion? आसान अल्फाज में mass opposes motion. So is it fair to say this line that mass is the property that resists change in motion? Got it? Do you understand where I'm coming from?
यू राइट, इनर्शिया भी है, इनर्शिया इज द सेम थिंग, बट असल चीज पीछे मैस है। जितना मैस ज्यादा होता है उतना इनर्शिया ज्यादा होता है, जितना मैस कम होता है उतना इनर्शिया कम होता है। सो असल जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन है, इनर्शिया या मैस है, जो जो कंट्रोल कर रही है इस सारे सारे सीन को। व्हाट्स द नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, इज दैट इनर्शिया और मैस? मैस। सो याद रखो, मैस इज द की। डू यू अंडरस्टैंड दिस? नाउ you should also understand that the greater the mass, the greater the mass, the smaller the change in the motion of the body produced by an applied force. Does this make sense? जितना mass ज्यादा होगा उतना ही छोटा चेंज प्रोड्यूस होगा अगर आपने एक फोर्स अप्लाई की उसके ऊपर। हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से, चेंज कहां से आएगा? The greater the mass, the smaller the change in the motion produced by the applied force. Ready? Can I write the next line? Therefore, can I say, आगे लिखें, the unit of mass is kilograms. PSI unit for mass is kilograms. आगे लिखो, नोट में लिख लो, इसका कॉमनली ये क्वेश्चन आता है वेट निकालने का। डू यू ऑल नो वेट? वेट इज mg। अभी बच्चों वाली बातें कर रहा हूं इसलिए डोंट थिंक कि ये ऐसे ही चलेगा, अभी फर्क पड़ जाएगा थोड़ी देर में। वेट इज mg, where g is called gravitational acceleration. g is gravitational acceleration, जिसकी वैल्यू होती है 9.81 न्यूटन पर केजी। यू ऑल नो दिस, फॉर अर्थ इट्स 9.81। ये वैल्यू याद रखनी है। मुझे बताओ इस फॉर्मूला में m किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? बताओ शाबाश, अब्दुल्ला हसन, दानिश। m is representing mass, and what is the unit for mass? हमेशा what is the unit for mass? Mass is always in kilograms। और कॉमनली एग्जाम में वो क्या यूनिट देता है आपको तंग करने के लिए? कॉमनली, वेल डन, शाबाश, इसमें मैं मेरे सवाल करते हैं, ग्राम देता है, ज्यादातर वो ग्राम देता है। सो याद रखना कि डू नॉट फॉरगेट टू कन्वर्ट grams to kilograms before solving। और मुझे ये बता दो, what is the physical significance of mass? Is it a scalar quantity or is it a vector quantity? Based on your knowledge from O levels, Masume. Mass is scalar. And what about weight? Is weight scalar or is it vector? Weight is vector. So far, so good. Weight is vector. सारे मेरे साथ हैं? अब गौर से सुनिएगा, ये जो g है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, gravitational acceleration, gravitational acceleration has two units। इसका एक यूनिट नहीं है, इसके दो यूनिट है। एक यूनिट की सेंस मैं अभी बना दूंगा, दूसरे यूनिट की सेंस कुछ अर्से में बन जाएगी। इसका यूनिट नंबर 1 इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ms -2,
एंड यूनिट नंबर 2 इज न्यूटन पर केजी। ये दोनों यूनिट्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के होते हैं, आपको ओ लेवल से पता है इस बात का। आर यू गाइस विद मी? न्यूटन पर केजी का जो रीजन है, दैट इज द फॉर्मूला ग्रेविटी इज वेट ओवर मास। दैट्स द रीजन। वेट का यूनिट न्यूटन होता है, मास का यूनिट किलोग्राम होता है, यहां से न्यूटन पर किलोग्राम आ जाता है। डू यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? ओ लेवल्स अभी तक सो फार सो गुड? ओके। MS-2 का रीजन जो है वो उसके नाम में है। इसके नाम में एक ऐसी चीज लिखी हुई है। वो क्या लिखा हुआ है जहां से आपको MS-2 पता चल गया? इसके नाम में कुछ है। देयर इज अ वर्ड, व्हाट्स द वर्ड? Acceleration, exactly, number. You know from O levels that the unit for acceleration is meter per second square. Gravitational acceleration, acceleration का unit meter per second square. यहां तो मेरे साथ सारे। Now you must acquaint yourself, you must familiarize yourself with a term which is known as free fall. I'm sure you've encountered this multiple times in your life, free fall. फ्री फॉल का मतलब क्या होता है वो आज समझ लो और लिख लो। फ्री फॉल का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट falling purely under the influence of gravity. An object which is falling purely under the influence of gravity. So when you say free fall, can there be any air resistance? जब आप फ्री फॉल, ये लफ्ज फ्री फॉल के साथ एयर रेजिस्टेंस जुड़ सकता है कभी? नहीं। ये जेन में बिठा लो आज पहले दिन से कि जब इफ एनीथिंग इज फ्रीली फॉलिंग, याद रखो इट्स फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली। ये प्योरली का मतलब है ओनली। इसका मतलब ये है दैट देयर इज नो अदर फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो air resistance. If you are saying free fall, then it means there is no air resistance. So can I say vacuum is like free fall, falling in a vacuum? Would you agree with that or would you disagree with that? If I write vacuum exactly, शाबाश, because vacuum के अंदर कोई force नहीं होती except for gravity. So याद रखो, vacuum is just like free fall. वैक्यूम में एयर नहीं होती, वैक्यूम में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ग्रेविटी होती। वैक्यूम का मतलब ये है कि हवा नहीं है। और ये जो हमने 9.81 की वैल्यू बचपन से पढ़ी है, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑन अर्थ, जिसकी वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डज दैट मेक सेंस? सो याद रखना 9.81 की वैल्यू कब लेनी चाहिए? जब हवा हो या ना हो? बताओ अब्दुल्ला, 9.81 की वैल्यू कब लेनी चाहिए? व्हेन देयर इज एयर और व्हेन देयर इज नो एयर? बेस्ड ऑन व्हाट यू लर्न सो फार, जब एयर नहीं है, व्हेन देयर इज नो एयर। अगर एयर आ गई और कोई बंदा 9.81 ले लेता, एयर है और 9.81 यूज करता है, सही कर रहा है गलत कर रहा है? इज ही राइट और रॉन्ग? एयर भी है और 9.81 भी साथ यूज हो रहा है, रॉन्ग। सो आर यू गाइस विथ मी सो फार? इज इट क्लियर? Also, if there is no air, if there is no air, and you have, if there is no air, and you have a feather, and you have a bowling ball समझते हो?
पता नहीं रेब ओ लेवल में क्या सिखाए, ओ लेवल आपने मुझसे तो नहीं पढ़ा। रेब ने कहते जो उसका मतलब है जो मैंने ओ लेवल में पढ़ा है मैंने गलत पढ़ा है, मैं रेब मैंने तो यही ओ लेवल के बच्चों को मैं यही पढ़ाता हूँ। So I haven't taught, probably I haven't taught you in O levels. All right. So if you have a feather and you have a bowling ball and you drop them in air, मुझे बताएं पहले कौन गिरेगा? बॉल पहले गिर जाएगी। Falls first. This falls second. एयर के अंदर आई एम सेइंग इन एयर, ये लिखो, ये साथ मैंने इतना बड़ा बड़ा लिखा है इन एयर। जो नॉर्मल सिचुएशन है अभी जाके करो घर के बाहर, एक फेदर को और एक बॉल को गिराओ, बॉल फौरन गिर जाएगी, फेदर यूं 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 करता हुआ आएगा, ऐसे ही है। लेकिन अगर हम एक फेदर को और उसी बॉल को फिर से गिराएं इन अ वैक्यूम, देन व्हाट विल हैपन? Firstly, in a vacuum, will they both have the same acceleration? Yes or no? When you say vacuum, understand what is vacuum. When you say vacuum, that means that both have the same acceleration, which is gravitational acceleration, which is 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि दोनों को जो पुल मिल रहा है अब वो सेम है, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, इकट्ठे, बिल्कुल इकट्ठे आ रहे हैं, बिल्कुल इकट्ठे आ रहे हैं। और जब ग्राउंड को भी टच करेंगे तो भी इकट्ठे करेंगे, दे फॉल टुगेदर because they both will have the same acceleration. Air में will they have the same acceleration or different accelerations? In air, जो ऊपर लिखा है in air, यहां पे will they have the same acceleration or different? Ball will have more acceleration, this will have less acceleration, इसलिए ball will fall first, that will fall second. Are you guys with me on this? सारे मेरे साथ हैं तो। और इस चीज को समझना तो जरूरी है, इसको देखना भी बहुत जरूरी है। Let me show you. One of my most favoriteest videos to watch and satisfy when everything else is not working out is this one. What's it? All right, so I'll explain this to you. Over here, basically, there is this setup. This is like an abandoned power facility of NASA. So इसका जो steel structure है वो बहुत strong है, एंड वो चूंकि इतना स्ट्रांग है, बेसिकली वो कर क्या सकते हैं, वो इसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट कर। मुझे बताओ नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो सकता है? ये पानी की बोतल है, मैं इसमें वैक्यूम क्रिएट करूंगा तो क्या होगा? व्हाट्स गोना हैपन? नॉर्मल वाटर के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो, फट फट नहीं, क्रश हो जाएगी। वो करते नहीं थे बचपन में, क्रश हो जाती है बॉटल, बिकॉज इतना बाहर एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है। सो वैक्यूम क्रिएट करना इज नॉट टू इजी, बट दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम, रीइंफोर्स्ड एल्यूमिनियम। सो इतनी उसको मोटा बनाया गया है कि अंदर वो वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। वो इसलिए ब्रायन कॉक्स जो है, दिस गाय, ही इज गेटिंग सो एक्साइटेड अबाउट दिस।
So अभी क्या कर रहे हैं, एक with the help of this lifter you can see that they've taken a bowling ball and some feathers. Can you see Brian Cox over here? So is there a vacuum in this room right now? Yes or no? No. Naturally ये खड़ा हुआ है, सांस ले रहा है, चल रहा है. So there is no vacuum. But now what he will do is, वो ये समझा रहे हैं, इसकी लॉजिक समझा रहा है आपको. Now what he's going to do is, can you see they're going to seal up? Seal करने लगे इसको. It's very interesting. So we're going to seal it up. और अभी देखना. So it takes 3 hours to create a vacuum. और वो भी तुम्हें दिखाएगा कि ये हवा बाहर निकाली जा रही है सारी. And they'll pump out of the air. बाबा जी कह रहे हैं कि हमने एयर बाहर निकाल रहे हैं. 240 psi पे एयर निकल चुकी है. Now air is removed. अब काउंटडाउन शुरू हो गया है. 3, 2, 1. Release. Look at that. Check किए मेरे जवानों. They're falling together. इन्होंने स्लो मोशन करके उसको ज्यादा ड्रामेटिक बना दिया. असल में ये बहुत तेजी से गिरेंगे, बट दे विल बी फॉलिंग टुगेदर. डज दैट मेक सेंस? Because the only acceleration acting on them is gravitational acceleration. सही है? There we go. They fall together. So you've got context to your knowledge. Amazing. Let's move on and let's discuss. Finally, मुझे ये बताओ कि हाँ विशाल, मैंने पूरी वीडियो दिखा दी. अब तुम रिकॉर्डिंग सुनना, रिकॉर्डिंग में देख लेना, पूरी वीडियो दिखाई है मैंने. Did you guys see the video? या मैं अकेला ही देख रहा था? Was I the only one watching the video? Yeah, of course. I saw it. Amazing. Let me share my screen again. Screen sharing due to some reason has stopped. Here we are. Here we go. चलें. हाँ जी वापस. मुझे बताओ, ग्रेविटी जहां मर्जी चले जाओ 9.81 रहती है, डिफरेंट हो जाती है? जल्दी बताओ जवानों. ग्रेविटी. Gravity changes with location. लिखो. Gravity on Earth हमने पहले लिखी हुई थी. Gravity on Moon, for example, is 1.67 Newton per kg. What does that mean for weight and mass? Gravity changes with location. Priya, simple. लोकेशन के साथ साथ ग्रेविटी चेंज होती रहेगी. सो मुझे बताओ, लोकेशन के साथ साथ मास चेंज होगा? मास डज नॉट चेंज विद लोकेशन. मास डज नॉट चेंज विद लोकेशन. क्या वेट चेंज होगा? शाबाश. वेट चेंजेस विद लोकेशन. वेट चेंजेस विद लोकेशन. रेडी गाइस? ये तो आसान बातें हो गई. Everyone ready? हाँ, और बाप स्लाइड सफर पड़ता है. क्वेश्चन लिखें. क्वेश्चन आया एग्जाम में, the acceleration due to gravity on moon is 1/6 of that on Earth. Write this question down. The weight of an object on the moon is 5,500 newtons. बताएं जी,
what is the mass of the object? Let's start. Shabash. Do the question. Let me know when you guys are ready. Options bhi de raha main, इसलिए don't wait for the options. Just tell me what the answer is. G. Mariam Sadakat, can I have you on the mic? Can you explain what is the answer? Shabash, jaldi karo. Zainab? I forgot I wasn't wearing my headphones. Myra, you unmuted. Do you want to give out the answer quickly? Myra? Zainab Hussain, Shabash, jaldi se aao mic pe. Karo. Let's do it together. Shabash. Ali Akbar, 3363, 335, 3.65. Zainab Hussain, आ जाओ ना माइक पे, क्या हो गया? मुश्किल लग रहा है तो मुझे साथ सॉल्व कर लेते हैं. नॉट अ प्रॉब्लम. अनम्यूट तो करो जैनब. शाबाश. यू हैव टू ट्राई. ट्राई के बगैर नहीं पता चलेगा. कैन यू गाइस हियर जैनब? Can you hear me now? I can hear you now, Zainab. Hello. Let's do it together, Zainab. What's the first thing that comes to your mind? So the weight. बताओ. Multiplied by 5500 by 6. So the weight का फॉर्मूला क्या होता है? mg. ऐसे ही है. Yes. अब मुझे बताओ, जब वो कहते हैं वेट ऑन मून, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अर्थ का होना चाहिए या मून का होना चाहिए? मून. मून का. दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता कि मून पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है, लेकिन ये वाली वैल्यू अर्थ वाली हमें डेटा बुकलेट में गिवन होती है. सो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन अर्थ इज हाउ मच? 9.81. 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. लिख रही हो मेरे साथ साथ? Yes. सो मुझे बताओ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन मून कैसे निकालेंगे? कहते हैं एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ. Divided by 6. एग्जैक्टली 1/6 है तो डिवाइड बाय 6 कर दोगे. तो क्या जवाब आएगा? करो कैलकुलेटर में. गेट योर कैलकुलेटर आउट. 9.81 1.635. ठीक है, लिख लो 1.635. इसको मैं न्यूटन पर केजी लिख दूं तो मसला नहीं है? बताओ. इफ आई राइट इसका यूनिट एज न्यूटन पर केजी, would that be correct or wrong? Correct. Correct. And if I write it as 1.635 meter per second square, would that be right or wrong? Right. Absolutely. शाबाश, तो आता तो है तुम्हें. अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ. वेट कितना था? 5500. तो यहाँ पे 5500 लिख दो. लिख रही हो मेरे साथ साथ? Yes. And what is the gravity of the moon? 1.635. जी पकड़े या डिवाइड कर दो. जवाब बताएं क्या आता है. कैलकुलेट में करो. What is the mass? Do you get 3? हाँ बोलो. 363.91. Exactly. So
इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स ठीक कर लो, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में जवाब देना होता है तो हम लिख देंगे 3400 किलोग्राम्स। याद रखो, ऑल आंसर्स आर ऑलवेज गिवन टू 2 to 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमेशा याद रखें इस बात को। रेडी विथ मी एवरीवन? सो फार सो गुड? सबको ये क्लियर हो गया? चले जी आगे आ जाए। अगली हेडिंग दो मेरे जवानों, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। देखो फोर्स एंड एक्सेलरेशन। मुझे ये बताओ, आप जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे किसी भी चीज पे, क्या उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होगी? यस और नो? जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे क्या उतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी? ऑफ कोर्स, यू ऑल नो दैट। और ये कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, कौन सा लॉ? किस लॉ से पता चलता है? रेफरेंस आगे डालो। यू ऑल डन दिस, शाबाश। लिखो विथ रेफरेंस टू N2। N2 समझते हो? N2, अगर मैं N2 लिख दूं, न्यूटन सेकंड लॉ लिख लेना। N2 का मतलब न्यूटन सेकंड लॉ। क्लियर हो गया? और तुम लोगों को याद होगा ओ लेवल से, जब इसको खोलोगे तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू एम ए। याद आ गया? जैसे खोलोगे तो वो जो कांस्टेंट जो निकलेगा वो मैथ निकलेगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू एम ए। और इस F में F कौन होगा? F होगा तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स, करेक्ट? F is your resultant force। अभी मैं इसको और क्लैरिफाई करूंगा। F is resultant force। What is M? बताओ बताओ जैनब, on the mic, what is M? शाबाश, माइक अनम्यूट कर लो। इतने अच्छे तो Mass. जवाब दिए। हाँ, मैस। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? सॉरी, ए क्या चीज होगी? ए इज एक्सेल, मैंने बोल ही दिया। ए इज एक्सेलरेशन। अब you need to understand what we mean when we say resultant force। अभी ने कहा बट इज न्यूटन सेकंड लॉ समथिंग एल्स? ये मैंने इसलिए ये कहीं लिखा है कि ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। मैंने कहा दिस इज विथ रेफरेंस टू न्यूटन सेकंड लॉ। आई हैवंट सेड दैट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेकंड लॉ। वो कुछ और है। वो मैं जब मैं व्हेनेवर आई गिव डेफिनेशंस अभी, यू शुड नो बाय नाउ कि मैं उसको अलग से मेंशन करता हूँ, स्पेसिफिकली लिखता हूँ दिस इज हाउ यू डिफाइन। मैंने डिफाइन थोड़ी किया, मैंने तो सिर्फ उसका रेफरेंस दी, हवाला दिया। I've given some reference to it। Let's talk of resultant force, guys। मुझे ये बताओ सबसे पहले, इज फोर्स अ स्केलर क्वांटिटी और इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी? ये बताएं। फोर्स वेक्टर। याद रखना, इन ऑल वेक्टर क्वेश्चंस, जितने भी वेक्टर के सवाल, वेक्टर क्वांटिटी क्वेश्चंस, in all vector quantity questions, always remember that you have to take your right side to be positive by default। इन ऑल वेक्टर क्वांटिटी, जितने वेक्टर क्वांटिटी के सवाल आएंगे उन सब में राइट साइड को, इस साइड को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन अज्यूम करना है। रेडी? हम राइट साइड को पॉजिटिव अज्यूम कर रहे हैं। यहां पे हम एक टेबल बनाने लगे। इस साइड पे लिख लो दिस इज रिजल्टेंट फोर्स। ओके, गेट रेडी। सारे मेरे साथ हो ना? सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ। और इस ऑब्जेक्ट पे लेट्स से फॉर एग्जांपल यहां पे लगती है 25 न्यूटन की फोर्स। टेल मी प्लीज व्हाट इज गोइंग टू बी योर रिजल्टेंट फोर्स? Your resultant force will also be 25 newtons, and will it be positive or negative?
साइन 7 चाहिए मुझे, साइन के बगैर कुछ नहीं करना। सो इसको लिखो +25 न्यूटन्स। रेडी? साइन साइन बताएगा, हमें राइट या लेफ्ट लिखने की जरूरत नहीं, साइन बताएगा। +25 लिख दिया, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट इज गोइंग राइट। यहां पे साइड पे लिख लो कि पॉजिटिव साइन मींस ऑब्जेक्ट इज मूविंग राइट। सो आपको राइट वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं होगी। अहमद, ये बात समझ आइए? अब हम बड़े हो गए, हम सिर्फ साइन से जज कर लिया करेंगे ऑब्जेक्ट किधर जाएगा। साइन को पढ़ेंगे पता चल जाएगा, साइन को पढ़ेंगे और कन्वेंशन को देखेंगे। फिर से ऑब्जेक्ट बनाओ। रिहा मेरे साथ, अब्दुल रहमान, आर यू विद मी? अब्दुल्ला, हैदर, हमायल, हमजा, हुसैन। ऑलराइट, नाउ गाइस, this is 25 newtons and this is 15 newtons. Let's do it. Tell me what is the resultant force with the sign. Sign, अब वेक्टर शुरू हो गए, साइन नहीं भूलना। शाबाश, +10 newtons. This is your object. This side is 55 newtons and this side is 25 newtons. आप बताएं। -30. Shabash. Because you did +25 plus -30. Do you guys understand? Sorry, -55, not -30, -55. क्योंकि ये वाला साइड आपका जो राइट साइड है ये पॉजिटिव है, तो आपने उसको पॉजिटिव लिखा। रिजल्टेंट निकाल रहे हो, रिजल्टेंट का मतलब होता है सम। प्लस किया, किसके साथ प्लस किया? 55 के साथ प्लस नहीं करना, -55 के साथ प्लस करना है। डज दैट मेक सेंस? रिजल्टेंट का मतलब होता है ओवरऑल, रिजल्टेंट का मतलब होता है सम। याद रखो, रिजल्टेंट का मतलब लिख लो प्लीज, इसका मतलब होता है वेक्टर सम। डू यू गाइस अंडरस्टैंड? वेक्टर सम, सम का मतलब प्लस। वेक्टर सम का मतलब कि अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो नेगेटिव साइन डालो, पॉजिटिव साइन आ रहा है पॉजिटिव साइन डालो, बट वेक्टर सम करना है। सो जिससे आपका आंसर आएगा -30 न्यूटन्स। और अब बताओ इस -30 का क्या मतलब होगा कि ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? अगर वो पूछ ले what does -30 mean, now you will know the object is moving left. So do you understand that now you will not write leftwards or rightwards, you will simply say by the sign you will, opposite direction नहीं, नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब वो आपको क्वेश्चन में जो कह रहा है कि राइट साइड इज पॉजिटिव, तो आप बताओगे जी इट्स गोइंग लेफ्ट। गॉट इट? सो डू यू अंडरस्टैंड व्हेन वी से रिजल्टेंट फोर्स? समझ आ गई? सो अब मैं इस फॉर्मूला को फिर से लिखूंगा, F इज इक्वल टू ma को मैं फिर से लिखूंगा, जिसमें मैं F को बोलूंगा रिजल्टेंट फोर्स। और इस रिजल्टेंट फोर्स को आई विल ब्रेक इट डाउन फर्दर एंड आई एम गोना राइट दिस एज F minus F is equals to ma. Do you guys recognize this equation from O levels? एक let's say ये ऑब्जेक्ट है, इसका ये डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है, so this direction is positive and this is also the direction of acceleration. You apply a force capital F to this side, there is some friction force on the other side. Small f is friction, opposing force, friction. This is forward force. फॉरवर्ड फोर्स को हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रिक्शन को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मुझे बताओ, जब मैं तुम लोगों को कहूंगा इधर ही इस पिक्चर में रहो और मुझे बताओ व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, तो बताओ रिजल्टेंट फोर्स कैसे लिखोगे? हाउ विल यू राइट द रिजल्टेंट फोर्स? मैंने अभी बताया था वेक्टर सम होता है, वेक्टर सम होता है। सो आप पहले लिखेंगे +f और फिर उसमें प्लस करेंगे और लिखेंगे -f। अभी -f ना भूल जाना,
क्योंकि वो F ऑपोजिट था, हमारा राइट साइड पॉजिटिव था, वेक्टर सम की बात हो रही है। सो प्लस F लिख दिया क्योंकि ये राइट साइड पॉइंट कर रहा है, प्लस F लिख दिया। आपको पता है रिजल्टेंट का मतलब होता है वेक्टर सम, मैंने भी ऊपर लिखवाया था वेक्टर सम की वजह से ये वाला प्लस आया बीच में। और फिर ये फ्रिक्शन क्योंकि ऑपोजिट थी इसलिए यहां पे माइनस एफ लिखा। तो क्या इसको आसान करके हम एफ माइनस एफ लिख सकते हैं जवानों, यस और नो? आसान करके। सो मुझे ये बताओ, क्या ये इक्वेशन सेंस बनाती है सबके लिए, यस और नो? अब मुझे ये एक सवाल का जवाब देना, वुड इट मेक सेंस कि इस इक्वेशन के अंदर आप फ्रिक्शन को फिर से माइनस करके डालें? वुड इट मेक सेंस कि आप फ्रिक्शन, लेट्स से फॉर एग्जांपल 55 है, तो आप यहां पे 55 ना लिखो, आप यहां पे -55 लिख दो, क्या ये सही होगा या गलत होगा? बताएं। इस इक्वेशन में should you put the friction as 55 or should you put it as -55? ये बताओ, यही सवाल है। should you put the friction force as 55 or -55? मेहर, you should put it as 55 क्योंकि आपने ये -55 था, सही कह रहे हो था, ये माइनस का निशान ही तो बाहर आ गया है, ये वही ना माइनस का निशान है जो बाहर आया हुआ है, तो एक और माइनस का निशान नहीं डालना। बहुत से लोग ये गड़बड़ करते हैं, वो फ्रिक्शन के अंदर फिर माइनस डाल देते हैं। इस इक्वेशन के अंदर ये माइनस का साइन ऑलरेडी वो चीज कर रहा है जो आप यहां पे कर रहे थे। सो इन दिस इक्वेशन, मुझे ये बताओ, इन दिस इक्वेशन आपको कैपिटल एफ और स्मॉल एफ के साइंस लिखने चाहिए या मैग्नीट्यूड्स लिखने चाहिए? इन द इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन एफ माइनस एफ में साइंस लिखने चाहिए या खाली मैग्नीट्यूड्स? सिर्फ मैग्नीट्यूड्स, याद रखना, क्योंकि वो माइनस आपने ऑलरेडी लगा दी। Yes, Gulsana, because friction was already pointing left and we already took it as negative. और वही नेगेटिव का साइन बाहर आ गया, तो फिर से नेगेटिव करने की तो जरूरत नहीं है ना उसको। डू यू अंडरस्टैंड गुलसना? सो याद रखो, इन दिस इक्वेशन only use the magnitudes of capital F and small f. Only use the magnitudes of capital F and small f. Is this clear, everyone? इस इक्वेशन में साइन नहीं डालना। सबको क्लियर हो गया? ओके, ब्रिलियंट। अब हम करते हैं एक सवाल, क्वेश्चन में देने लगा हूं आपको। अभी मुश्किल सवाल दूं या आसान दूं? Let me give you an easy question first. क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, a rocket produces an upward force of 15 mega Newton and it has a weight of 8 mega newtons. Option question part A. In flight, the force due to air resistance is 500 kilonewtons. Find the resultant force.
चलिए, पहला सवाल ये, पार्ट बी भी लिख लो. What is the mass of the rocket is 0.8 into 10 raised to the power 5 kilograms. You have to calculate the acceleration and the direction in which it's going. Let's go, guys. Question try karo. Shabash. Calculate the acceleration and direction which it's going as the second thing. क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन की जगह छोड़ देना, ये तुम लोगों को नोट्स में दे दूंगा, क्वेश्चन बाद में लिख लेना, अभी सॉल्व करो. या यू विल नो लेटर. शाबाश, सॉल्व करेगी. यस, जब आपको ना गिवन हो तो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें, जिसने आपने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था. मेगा इज 10 is to power 6. यस यस यस. मेगा होता है 10 is to power 6, किलो होता है 10 is to power 3. लिख लो साइड पर. ये जब आप प्रीफिक्स टेबल्स करोगे मेरे साथ तब पता चल जाएगा, बट अभी नोट में लिख लो. अच्छी बात है, हम उन सब चीजों को यूज कर रहे हैं. मेगा इज 10 is to power 6, किलो इज 10 is to power 3. राइट दिस डाउन ऑन द साइड. हरी अप गाइस. अब्दुल रहमान कह रहे पहले सवाल का जवाब है -7.5 mn, and Abir is saying it's 6.5 mn. Yaya is also saying it's 6.5 mn. Ramin and Imran, what do you think? Is it 6.5 mn or is it something else? Ureb, what do you think? Talha, Suleiman, what do you guys think? I think it's 7.5. Is it? Acha, mujhe batao. Okay, yeah, that's great. Tell me your logic. Did you make a rocket? Kind of. Yeah, okay. Yeah, I did. So let's say this is a rocket. And okay, so मुझे ये बताओ तुमने ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लिखी? 15 meganewton. शाबाश, well done. नीचे की तरफ कौन सी रखी? The weight 8 meganewton. And is there a third force? Yeah, the air Yes. resistance, it is in the same direction as the upward force. As the upward force. Oh no, resistance का लफ्ज आ गया. Resistance. Isn't resistance friction? Isn't resistance friction, guys? जब आप resistance कहते हो तो friction नहीं कहते उसको. Frictional force is the resistive force. याद रखो इस बात को. Resistance का लफ्ज लिखा हुआ है तो उसका मतलब है this is friction. और याद रखो friction always opposes your direction of motion. Air resistance is friction due to air which opposes, लिख लो, which opposes direction of your motion. याद रखना इस बात को. इसलिए तो एरोडायनामिक बॉडीज बनाते हैं. सारी गेम ही वो है कि हवा का जो फ्रिक्शन आ रहा है उसको कम कैसे करें. सो फ्रिक्शन इज ड्यू टू एयर एंड इट ऑलवेज अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन. सो एम आई गोइंग अप और डाउन इन द क्वेश्चन? बताओ रामी, एम आई गोइंग अप और डाउन? Upwards. Upwards. So लिख लो direction of motion is upwards. So where will air resistance be? Downwards. Acha, ab Ramin, I'll reverse the question for you. Ramin, let's say I'm falling. What's my direction of motion? I'm falling. Downwards. So where will air resistance be? Upwards. शाबाश. Do you understand? जरूरी नहीं है कि हर दफा एयर रेजिस्टेंस नीचे हो. Yeah. आपने मोशन से जज करना है उसको मेरे जवानों. सवाल में लिखा है कि ऊपर जा रहा है तो आपका एयर रेजिस्टेंस नीचे की तरफ हो जाएगा और वो होगा 500 किलो न्यूटन्स. सो रिजल्टेंट फोर्स हमारी कितनी होगी जी? रिजल्टेंट फोर्स विल बी F minus F. So can I say 15
into 10 मेगा कितना होता है बताओ 10 ज़ैनब raised मेगा to कितना power 6. हाँ शाबाश वेल डन आमीन माइनस अब बताओ फ्रिक्शन फोर्स एक है या दो है 2 इज इट वन दो है सो उन दोनों को हमें ऐड करना चाहिए यस और नो add करना चाहिए. because they're vectors they're pointing in the same direction so they will add so 500 into 10 raised to power 3 plus 8 into 10 raised to power 6 अब बताओ जवाब क्या आएगा करो कैलकुलेट ताहा अपना आंसर चेक करो आई थिंक गलत है well done guys it is going to be 6 point I think it's going to be 6.5 मैं तुम्हारा भी आंसर ठीक नहीं आ रहा कैलकुलेटर में चेक करो it should be 6.5 it is 6.5 ना and is it positive or negative ये भी बताएं साथ is it plus or is it minus Positive. It's positive 6.5 mega newtons so what does that tell you is it going up or down this rocket it's going up क्योंकि आपका आंसर Upwards. पॉजिटिव आ गया एग्जैक्टली क्योंकि आपने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया आपकी रिजल्टेंट फोर्स भी पॉजिटिव आई तो इसका मतलब ये है कि हमें ये पता चल गया दैट द डायरेक्शन in which it's going is upwards do you guys understand वो next part का जवाब हमें कुछ मिल गया अभी सारे मेरे साथ हैं it's upwards ready now how do you calculate the acceleration जल्दी से बता दो मुझे ज़ैनब मासूम है how will we calculate the acceleration फारिया ने निकाल लिए फारिया where's फारिया can I have you on the mic जी में जवाब मेरे कोई जरूरत नहीं कन्वर्ट करने की 10 की पावर 6 में वो उसको ऐड करें कैलकुलेटर का काम है और जवाब निकालना आपको क्या टेंशन लेने की जरूरत है Fariya saying there's a lot of noise behind her I wonder if she's sitting in a cinema Nabba how mic pe Yes, sir. yes tell me how will we calculate the acceleration Sir, we'll use the formula F is equals to ma. ठीक For है resultant force, we have calculated in the previous part. 6.5 into 10 power 6 divided by divided by 0.8 into 10 power 5. ये कैसे आया Sir, आपने क्वेश्चन में बताया हुआ mass. क्वेश्चन में तो मैंने वेट बताया Sir, आपने बताया हुआ mass of rocket is 0.8 into 10 power 5. mass of rocket कहाँ लिखा है mass of rocket did I give you the mass of the rocket or did I give you the weight of the rocket मुझे तो Sir, weight you of the gave the rocket mass of the rocket. ओ अच्छा सॉरी मैं इधर देख रहा हूँ मैं इधर नहीं देख रहा बट यू गाइस नो हाउ टू कन्वर्ट अगर वेट ना अगर मैथ्स ना गिवन होता वेट होता तो आप वेट से कन्वर्ट कर सकते एनीवे माय बैड 0.8 into 10 power 5 what answer will you get 81.25 meter per second square. so मुझे बताओ हम क्या लिखेंगे 81.25 लिख दिया तो सही होगा गलत होगा पहले तो ये बताओ ना 81.25 अभी मैंने नहीं, समझाया हम 81 जी 81 लिखेंगे. 81 लिख देंगे या 81.3 हद हो गई तो 81.3 81 is Yes. also acceptable Yes. so 81 क्या Meter per 81 second क्या square going हाँ ना upwards. शाबाश और ये और upwards हम पहले लिख चुके हैं is this clear everyone क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया अरबाब has a question जी रिया बिल्कुल कर सकते हैं करके देखिएगा अरबाब go ahead Sir, wouldn't it be newtons per kg? क्योंकि अगर उससे हम मैंने फार्मूला से देखें मैंने अभी ये पहले ही बताया था कि whether you write meter per second square or newton per kg it's the same thing value remains the same Okay. value does not change ठीक है Oh, और yes. न्यूटन per kg भी लिख सकते हैं ऑफ कोर्स दोनों एक ही चीज है दोनों एक ही चीज का यूनिट है ठीक है क्लियर हो Okay. गया डन जी वेल डन गाइस दैट्स गुड प्रोग्रेस इंशाल्लाह सी यू गाइस टुमारो टेक केयर बेस्ट ऑफ लक Sir, I have one other question. यस गो अहेड Sir, हमने इसको पॉजिटिव इसलिए लिया ना बिकॉज अपवर्ड आप सॉरी इसलिए लिया क्योंकि हम हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव है राइट
हमारे पास कुछ क्वेश्चन में था नहीं, इसलिए हमने अपवर्ड को पॉजिटिव ले लिया। ओके सर। सही है, Thank कहीं you. पे क्वेश्चन में कोई डायरेक्शन नहीं गिवन था, सो अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन Yes. ना गिवन हो तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले सकते हो। ओके सर। ठीक है रिया, W=mg से आंसर थोड़ा सा फर्क हो सकता है बिकॉज ग्रेविटी की वैल्यू 9.81 ले ली है, बट उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसने मैथ्स दिया हुआ तो वो मैथ्स यूज कर ले। उसने मेरा ख्याल है ग्रेविटी की वैल्यू 10 लेके सॉल्व कर दिया, बट दैट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट। राउंड ऑफ करोगे तो आंसर 80 के आसपास ही होगा। ठीक है, आप ट्राई करना ना, कल कल मुझे बताना क्या आंसर आता है। ऑलराइट ऑलराइट गाइस, आई हैव अनदर क्लास, सो इंशाल्लाह लेट्स कैच अप टुमारो। रिया, डिस्कस इट इन योर ग्रुप, इन योर क्लास ग्रुप। ठीक है, चलिए, टेक केयर एवरीबॉडी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज, टेक केयर। Take care, खुदा हाफिज।